Good afternoon, all. Let's start with the topic. We were discussing about online transactions in the last lecture. So let's just continue with the same chapter. So let me just first of all come to the book. Okay. Am I audible? Sound आ रही है सबको? From my side, it is on, beta. Chalo. So let's start with the topic. Today we'll learn about what all different sites and options are available from where um, we people can do online education and learning, right? So a lot of online courses, tutorials and tests are available on internet from where we people can learn and lot of things. And moreover, the thing is that how these platforms are important. Because see, uh, video tutorials, they help us to learn the things in a better way, because since they are having certain interactive options, so it's easy for us to understand the things. So a lot of sites are there. We'll just talk about all such sites today. And secondly, we can also easily put a feedback to the person who is sending the tutorial. If you have doubts and all, we can easily get it done. Certain webinars which are conducted. Webinars are just like we are doing right now, where the teachers and the students, they all online at a real time platform, and they can participate in the lectures, and we can keep on interacting with each other, and the queries can be answered and solved. Talking about online education sites, there are several kind of sites. We'll do one by one, like khanacademy.org, ठीक है, uh, eagetutors.com. Some of these sites are there. Like Khan Academy is one of the quite important and good site. It's an education website. It was created in 2006 by some of the educators. And in this website, you'll find video lectures of different subjects like maths, history, physics, economics, civics, and economics. A lot of video lectures are available. As you can see this interface over here, like ये मैथ्स है, मैथ्स के अंदर उनके सब टॉपिक्स हैं. तो आपको जिस टॉपिक के बारे में you want to search a video or see a video, just click on that particular link. And we have categories of links and video links over here. जैसे ये कुछ फाउंडेशन कोर्सेज हैं, ये थोड़े हाई स्कूल और थोड़े 11th-12th के लेवल के कोर्सेज हैं. And we'll also have some courses which are beyond 12th also. So it's a good site from where you can learn a lot of things. Next is audacity.org. Now this particular site is for doing online courses, right? And these courses are for development of technical skills of a student, right? तो इसमें आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हो. uh, it claims to provide projects built by technical leaders like Google and AT&T. तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो गूगल और AT&T जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके टेक्निकल लीडर्स ने बनाई होती है. तो बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज हैं, राइट? एक तो these resources are from a recognized organization, and that too created by experts. So they are very helpful, right? So we can go with these online courses. You can learn new things, learn new sectors, explore all the things over here.
So category wise, you can see over here data science, which is a very prevailing area right now these days. So web development, software engineering, Android, if you want to create an app on Android, उसके बारे में यहाँ पे आप कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हो. iOS app generation, likewise. So you um, just go through all these apps, and then we have, it is not that it's only for experts to learn. There are different categories of courses available which are for the beginners also to learn. So beginners के लिए भी जो नया है किसी चीज़ को सीखना, उनके लिए भी अच्छे options हैं. It's a good site, so please go to it. Then Coursera.org, edx.org, these are again high quality online courses, and they are generally free courses, right? And these courses are provided by various universities of the globe. बहुत सारी universities ने इस website, इन websites पे they keep on giving certain courses, and generally they are free. And बाकी ये है कि अगर आपको कोई verified certificate चाहिए, तो then you have to pay a marginal fee in that case, right? So then the topics which are covered in this site are humanities, science and engineering, right? स्कूल लेवल पे जो इन एरियाज में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, right? So like this is the interface as you see when you open coursera.com. Now this is another website called as w3schools.com. Now this is again a website where you can learn all web development technology. तो ये सिर्फ आईटी और आईटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में ही है. और इसमें एक्चुअली ये ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है, ये ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें वीडियोस और टेक्स्ट मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे किसी भी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर. लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न HTML, यू वांट टू लर्न PHP, वेब डिज़ाइनिंग, CSS, JavaScript or any other language like C, C++, C, right, Python and all those languages. तो जिस लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ सीखना है तो आप इन ट्यूटोरियल्स में जाओ. और ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है W3 Schools, because it basically meant for the people who want to explore new things or learn new things in technology field. ठीक है, जिसको कंप्यूटर फील्ड में कुछ नई चीज़ें सीखनी हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, राइट? और इफ़ यू एक्सप्लोर दिस, आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में मिलेंगे, आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स में मिलेंगे, और दे ऑल्सो हैव एन इंटरफेस वेयर दे विल शो यू द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. यू कैन क्रिएट अ प्रोग्राम ओवर देयर. अब वो उनके रेडीमेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, उनको रन करने के ऑप्शंस होते हैं, और वो आपको आउटपुट्स भी दिखाते हैं कि ये प्रोग्राम में अगर आप ये लिखोगे तो आपका आउटपुट ऐसा आएगा. तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव इंटरफेस बनाया है इन लोगों ने. So kindly go through it and explore this. This is very good and important site for all IT people, the people who want to learn IT. Some more sites are gcflearnfree.org, and it creates and provide quality, innovative online learning opportunities. And it is again a site where you can learn new things. And if you want to improve your technology or literacy, literacy is your communication, your English and math skills. So you can always go to this and just join different lessons available. There are 750 different lessons available, and they're all freely available. ये भी ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट है, तो आप इसमें जाके एक्सेस कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़ को. Now this is the e-governance site, a government site, NCERT, National Council of Education Research and Training. This is the Indian government organization which monitors the education part of the country. तो इनके वेबसाइट पे भी आपको ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज मिलेंगे. You can download e-books, you can download journals, question papers, children books, etc. So जो आपकी NCERT की बुक्स हैं वो आपको यहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगी. You can download them, and of course if you want to buy a book, there's an option there to buy also.
So go through the site, explore these things. These are quite important. In addition to learning, there are several sites that allow the student to test their knowledge. ठीक है, कुछ ऐसी साइट्स भी होती हैं जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, right? And these websites, they host tests in different subjects. अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे. For example, there's a link given here, www.britishstudy.com, then quizzes and grammar test.php. Now, this is basically a test where you can check your grammar. As you can see this interface, यहाँ पे आपको questions आएंगे और उनके options आएंगे, उनमें से आप अपना you can appear for the test, and these are generally free. और इसमें आपको अपनी grammar का level पता लगेगा, and then they'll give you suggestions to improve it also. Right? Like one more example is given away, personviewindia.com, right? This is basically designed by US School Law Based Council. So for here the law students they can learn new things, they can apply for the new test over here. Fine. This ये लॉ सूट वाला एग्जाम्पल है, ये उसका इंटरफेस है. यहाँ पे आप रजिस्टर करके टेस्ट वगैरह ऑनलाइन अपेयर कर सकते हो. So that's all about e-learning and online learning and teaching. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. अब यहाँ से जो टॉपिक शुरू हो जाएगा, दिस टॉपिक इज बेसिकली वेयर वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन. कि अगर आपको कोई वेब एप्लीकेशन बनाना है तो वो कैसे बनेगा. अब बिफोर वी स्टार्ट अप विद टॉपिक, मैं आपको पहले थोड़ा, जैसे हमने डेटाबेस किया था, डेटाबेस में हमने MySQL की कमांड्स की थी. एक हमारे सिलेबस में देयर इज वन मोर टॉपिक, वन मोर चैप्टर, दैट इज NetBeans. NetBeans इज ए जावा सॉफ्टवेयर और इसके अंदर हम इंटरैक्टिव GUIs बना सकते हैं, राइट. सी मैं एक ब्रॉडर टर्म्स में बात करता हूँ. जैसे हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर देखते हैं या बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें होती हैं. वन थिंग इज कि उस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस मतलब कि वो चीज़ जो यूज़र जिसमें इंटरेक्ट करेगा. तो हम कुछ फॉर्म्स बनाते हैं, समटाइम्स उन फॉर्म्स में कहीं पे कोई बटन लगाया है, कहीं पे कुछ टेक्स्ट फील्ड्स लगाए हैं, कहीं पे कुछ रेडियो बटन्स लगाए हैं, कहीं लिस्ट बनी हुई है. तो ऐसे कंपोनेंट्स डाल के हम एक फॉर्म सॉर्ट ऑफ थिंग वी कैन क्रिएट. फिर यूज़र उस फॉर्म में वैल्यूज़ को फिल करेगा और उस बटन्स को क्लिक करेगा. जैसे ही बटन को क्लिक करता है, सम एक्शन इज ट्रिगर्ड, तो कोई एक्शन जनरेट होगा. that action is actually the response of that particular that software. ठीक है. तो ऐसे एप्लीकेशंस बनाने के लिए वी नीड टू नो सर्टेन लैंग्वेजेस. तो जावा का जो NetBeans सॉफ्टवेयर है उसमें हम ऐसे इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बना सकते हैं. अब इसमें दो चीज़ें हैं, इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस बनाना, फिर उसमें जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कैसे आंसर आएगा, वो आंसर कहाँ पे डिस्प्ले करना है, ये सारी चीज़ें हम उस NetBeans में सीखेंगे. बट उसमें जो दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ़ आई वांट कि यूज़र किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में, जैसे NetBeans का कोई इंटरफेस है, उसमें कोई वैल्यूज़ एंटर करता है, मुझे वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहीं पे स्टोर करनी है, जैसा कि नॉर्मल सॉफ्टवेयर में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा कि एक उनके पास एक सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर विल गेट वन इंटरफेस जहाँ पे वो बुक की डिटेल्स डालेंगे. ठीक है. और जब वो उसको सेव कर, विल हैव ए सेव बटन समवेयर, व्हेन दे क्लिक ऑन दैट सेव बटन, वो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बुक की डाली वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पे हमने सेव कर ली, सो दैट लेटर ऑन अगर हमने उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है तो वो बुक नेम डालेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन अपने आप सामने आ जाए. अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमने वो इंटरफेस बनाना है जिसके अंदर एंट्रीज डाली जाएंगी और दैट डिटेल्स विल बी सेव्ड, और सेकेंडली वो सेव कहाँ करनी है,
उसके लिए वी नीड अ डेटाबेस जो हम सीक्वल वगैरह सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। तो हर सॉफ्टवेयर में ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें दो चीज़ें बनाते हैं हम लोग। एक तो वो इंटरफेस जिसके लिए अलग सॉफ्ट लैंग्वेज है, जैसे जावा में या नेटबीन्स में बनेगी, और एक हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है जो सीक्वल जैसे सॉफ्टवेयर में बनता है, और इन दोनों को हम आपस में लिंक कर देते हैं। ठीक है, तो दिस जो जावा वाला इंटरफेस है जिसमें हमने एप्लीकेशन का इंटरफेस बनाया, सामने जो दिख रहा है उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। और जिस सॉफ्टवेयर में सारा कुछ सेव हो रहा है, जैसे सीक्वल का सॉफ्टवेयर है, कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, उसको हम बैक एंड बोलते हैं। तो जो कुछ भी फ्रंट एंड पे डाला जाएगा वो बैक एंड में सेव होता जाएगा। ठीक है, तो दिस थिंग इज इन आर सिलेबस के भाई ये चीज़ें कैसे होती हैं। नाउ दिस इज ऑल प्रोजेक्ट इज अबाउट। तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट एक टास्क है जिससे वी कैन क्रिएट अ यूनिक सर्विस और रिजल्ट, और वो रिजल्ट हम कहीं ना कहीं फॉर्म में डिस्प्ले भी करते हैं और सेव भी करते हैं। राइट नाउ ये दीज आर ऑल टास्क और प्रोजेक्ट्स, इसी को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं कि ऐसे वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए व्हाट ऑल मेथड्स विल फॉलो। राइट, सो जैसे फॉर एग्जांपल इट इज रिटन ओवर हियर दैट web application is a program that is stored on the remote server। as I told you कि इस प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो किसी सर्वर में सेव होंगी, एंड फॉर दैट वी नीड अ डेटाबेस टू सेव इट। राइट, सो लाइक फॉर एग्जांपल क्विज बनाना या कोई गेम बनानी या कोई बिल कैलकुलेटर बनाना, तो ऐसे कुछ एप्लीकेशंस बनाने हों तो हमें ये दोनों चीज़ें बनानी पड़ेंगी, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड इज द interface from where user will enter the values, and backend is where the data is saved actually in database forms। ठीक है, अब प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट में? द प्रोजेक्ट हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड। so whenever we create a project, it should have a beginning and end. Come from where it should there should be some particular point from where it should start, और एक पर्टिकुलर पॉइंट उसका डेस्टिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इट शुड हैव सम बाउंड्रीज। देन प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सम फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर हमें रिसोर्सेज चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया कि बैकएंड के लिए वी नीड अ डेटाबेस, और डेटाबेस बनाने के लिए वी नीड डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऐसे रिसोर्सेज वी नीड। अ प्रोजेक्ट हैज ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब उसका बिगिनिंग कब होगी, एंडिंग कब होगी, उसका टाइम फ्रेम, टाइम की सेटिंग करना हमें प्रोजेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। और प्रोजेक्ट इज कंप्लीट व्हेन इट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। और प्रोजेक्ट तब खत्म होता है कि जो हमने उस प्रोजेक्ट में से आउटपुट सोचा था, जब वो आउटपुट आपको मिल जाएगा, दैट टाइम द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट। राइट, so these projects are managed in a way, so what is this project management? The process of achieving the objectives of the project through a set of activities defined within the time frame to produce the end results। so एक ऐसा process जिसमें हम project के जो भी objectives हैं उसको अचीव कर सकें, जिसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जनरेट होंगी जो टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट होंगी, और वो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें एंड में देंगे। राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट phases, this is very important, जो एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज है। व्हाट आर द phases ऑफ द वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट? कि आप जब भी कोई वेब एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें कौन कौन से फेजेस हैं? ठीक है, मतलब उसका जो प्रोसेस है बनाने का किसी वेब एप्लीकेशन को, उसको हम 4 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं कि 4 तरीके से काम होगा। सबसे पहले वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज विल एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स डेफिनेशन फेज। और दिस इज द फेज वेयर द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू इज टू चेक द रिक्वायरमेंट्स कि हमें इस सॉफ्टवेयर अगर हमने कोई बनाना है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। देन विल डिज़ाइन इट। डिज़ाइनिंग फेज इज जस्ट डिज़ाइनिंग द थिंग्स ऑन
not on actual ground but on some temporary ground. जैसे बुक पे या पेज के ऊपर हमने डिजाइनिंग की कि हमने ये चीज़ें बनानी है, ठीक है, प्लानिंग यू कैन से. एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज इज द थर्ड फेज व्हेन यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, आपका डिज़ाइन रेडी है, आपने जो रिक्वायरमेंट स्टडी कर ली हैं, उसके बाद विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दैट सॉफ्टवेयर, विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग दैट प्रोजेक्ट. वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है. और जब इम्प्लीमेंट हो गया, सारा कुछ बन गया, उसके बाद लास्ट फेज इज द टेस्टिंग फेज वेयर विल टेस्ट द सॉफ्टवेयर और द प्रोजेक्ट दैट वी हैव मेड. उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या हमने जो रिक्वायरमेंट सोची थी, आर दोज रिक्वायरमेंट्स मेट और नॉट. ठीक है, सो विल ट्राई टू पुट अप सम values to the project so that we can get a desired and output accurate results. So we'll try to test that in this phase. Then additionally, we have some other part of phases. There are all these phases there in a planning and monitoring phase also. Planning and monitoring is just keep on planning what all things are to be done, and monitoring is to check whether the things are being done properly or not, right? So this is the way. Pehle requirement and definition, then design, then implementation, and then last is the test, right? Now let's study this in detail one by one. Requirement or definition phase में क्या होगा? In this phase we'll identify the problem. We'll try to identify कि problem है क्या, ठीक है? For which the application is to be developed. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, क्या क्या एक्चुअली हमें करना क्या है, उसके बारे में स्टडी करना. फिर जो प्रॉब्लम हमने सोची है उसका स्कोप क्या है. स्कोप इज द एरिया इन विच दैट इज एक्सेसिबल. स्कोप होता है जिस एरिया के अंदर हमने उसको यूज करना है. मान लो मुझे कोई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी का बनाना है, तो वी नोट दैट द स्कोप ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज द लाइब्रेरी सिस्टम, द स्कूल, द ऑर्गेनाइजेशंस, द कॉलेजेस, जिसके अंदर वो यूज हो सके. ठीक है ना. तो उसका स्कोप डिसाइड करते हैं कि इसमें बच्चों को या बुक्स के बारे में डिटेल्स होगी, जो बच्चे इशू करा रहे हैं, जो पर्सन हु इज गेटिंग इशूड द बुक्स विच आर बीइंग इशूड, उनकी डिटेल्स होंगी, जो बुक्स रिटर्न हो रही हैं उनकी डिटेल्स होंगी. तो ये पूरा स्कोप हो गया. इसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें, राइट. नाउ इन दिस फॉलोइंग इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड. पहला है फिजिबिलिटी. पहली चीज़ हम सोचते हैं कि इज द प्रोजेक्ट फिजिबल. क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है. फिजिबल मतलब इज इट पॉसिबल और नॉट. चेक वेदर द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल, इज इट पॉसिबल टू डू इट. और सेकेंडली, वंस इट इज पॉसिबल देन इज इट प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल मतलब जो हमने उसको इकोनॉमिकली सोचा है, क्या वो इकोनॉमिकली हो सकता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा तो नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है प्रोजेक्ट में खर्चा ज़्यादा हो और बाद में हमारे आउटपुट जो है वो कम आए. तो ये चीज़ें हम पहले प्लान करते हैं. इफ़ feasible, proceed further, otherwise no need to proceed. अगर आपको feasible नहीं लगता है then we should not forward, we should not go further. अगर वो feasible है आपका प्रोजेक्ट तभी हमें आगे करना चाहिए, right? Second is the scope. Scope is the focus is on what the application must do. क्या क्या application में करना है, that is the scope, right? We have to define the scope of the application. Now compile a detailed list with a clear description of application features. Now what we need to do is कि हम उस application में क्या क्या features लगाएंगे, what all options will generate, उनकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें बनानी पड़ेगी. वो हम कंपाइल करेंगे पहले. फिर देन विल एस्टेब्लिश द गोल्स दैट द सोल्यूशन मस्ट अचीव. कि भाई जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है इसका जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी फाइनल आउटपुट आएगा, उसमें उसके क्या क्या गोल्स होंगे, क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, दैट विल एस्टेब्लिश. एंड देन रिकॉग्नाइजिंग द लिमिटेशंस दैट आर प्लेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑन द प्रोजेक्ट. देन विल फाइंड आउट कि भाई हमने जो सोचा है, हमने जो फीचर्स डिफाइन किए हैं, जो भी हमने कंपाइल किया है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट. कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज इन दैट प्रोजेक्ट, राइट, एंड हाउ विल वी आर गोइंग टू
एनालाइज और इम्प्रूव दोज एरियाज, राइट। सो बेसिकली ये जो पार्ट है इसमें हम सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू डू and what all things are required and what are the goals of it, what are the final outputs, and how we are going to get those outputs, right? Then we jump over to the next phase, which is the designing phase, right? ये हमने सिर्फ एक प्लान बनाया था कि हम क्या क्या हमें क्या क्या चाहिए. We have gathered all sort of information what we need. Now we'll come to the actual plan, right? This phase, the focus of the phase is to how the application is to be designed. कि एप्लीकेशन बनाएंगे कैसे, उसके डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होंगी, राइट. नाउ इसमें एक पार्ट है अ मैप ऑफ द वेब एप्लीकेशन साइट. वी नीड टू क्रिएट अ मैप. मैप इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द साइट. द प्रोजेक्ट जो बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ मेनी पेजेस यू आर गोइंग टू मेक, राइट. हाउ यू आर गोइंग टू रिलेट दीज पेजेस, रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगी, किस पेज को किस पेज के साथ लिंक करना है. तो एक तरह का मैप और उसका पाथवे हम लोग डिफाइन करते हैं कि भी हम इसमें ये जैसे लाइब्रेरी सिस्टम है उसमें एक पेज होगा जिसमें बुक्स की एंट्री होगी, उसमें एक पेज होगा जिसमें बुक सर्च करने का ऑप्शन होगा, उसमें एक पेज होगा जिसमें अगर किसी ने बुक इशू कराई है तो वो कैसे मैनेज करना है. देन विल हैव वन पेज फॉर द बुक, अगर रिटर्न होती है तो उसको कैसे मैनेज करना है. देन वी हैव वन पेज फॉर लाइक कोई बुक हमें डिलीट करनी है तो वो कैसे करना है. तो ऐसे वी हैव टू प्लान आउट कि क्या क्या पेजेस और क्या क्या हमने उसमें इंटरेक्शंस बनाने हैं और फिर इनको आपस में लिंक कैसे करेंगे, ये सारे पेजेस कैसे वर्क करेंगे. विल वर्क आउट ऑन दैट, विल क्रिएट अ मैप काइंड ऑफ थिंग फॉर दैट. देन सेकेंडली, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमें डेटाबेस भी क्रिएट करना पड़ता है. तो वी नीड टू डिज़ाइन द एप्लीकेशन डेटाबेस. विल डिज़ाइन कि हमें कितने डेटाबेस का क्या नाम रखना है, उसमें कितने टेबल्स बनेंगे, उन टेबल्स के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, what are the attributes that we are going to use in the tables, means what are the columns that we are going to use. उन columns में क्या क्या data types रखोगे, what would be the size of the column, how we are going to relate the tables like foreign key and all, where we'll apply foreign key, where we are going to apply primary key. These all things we have to plan up in this phase. And then the design the structure of the page. Structure of the page is कि जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो उसका हेडर क्या होगा, उसमें कंटेंट कौन सी जगह पे आएगा, कंटेंट कहाँ कहाँ डिस्प्ले करना है, उसमें साइड बार्स देने हैं कि नहीं देने हैं, फुटर देना है कि नहीं देना है. दीज ऑल मेन सेक्शंस वी हैव टू प्लान आउट. तो ये तो हो गया आपका डिज़ाइनिंग फेज. So once designing is completely over, we'll go with the implementation phase. Now here we'll try to first of all create the backend database. हम एक database बनाएंगे और फिर हम फ्रंट एंड बनाएंगे जो यूज़र के लिए हमने इंटरेक्शन टूल बनाना है. ठीक है ना, जो यूज़र यूज़ करेगा वो फ्रंट एंड हो गया और डेटाबेस जिसके अंदर हमने सारी स्टोरेज करनी है इंफॉर्मेशन की, दोनों चीज़ें बनाएंगे. विल क्रिएट दैम विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर. जैसे माई सीक्वल में डेटाबेस बन जाएगा और जावा में और नेटबीन्स में हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लेंगे, या और भी सॉफ्टवेयर जैसे विजुअल बेसिक में भी फ्रंट एंड बनता है. तो likewise we'll actually create them on ground, and then connectivity between these two things can be made. कि दोनों को आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए कमांड इंस्ट्रक्शंस आती हैं, their way of doing it, वो they will try to learn how to connect these things, right. So back end में SQL codes, defining the tables बनाए, attributes बनाए, columns बनाए, रिलेशनशिप क्रिएट किए, रिलेशनशिप में आपकी फॉरेन कीज़ वगैरह लगाई गई. फ्रंट एंड में आपको पेज का स्ट्रक्चर, पेज का लेआउट ये डिज़ाइन करना है. ठीक है. इनपुट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि यूज़र किस जगह पे वैल्यू एंटर करेगा. ठीक है. बटन्स आपको लगाने पड़ेंगे, काइंड ऑफ बटन्स लाइक कोई बटन लगाया है, कोई रेडियो बटन लगाया है, कॉम्बो बॉक्स लगानी है, लिस्ट लगानी है. तो ये सारे कंपोनेंट्स हम लोग डिसाइड करके बनाएंगे. दिस इज हाउ वी डिज़ाइन अ फ्रंट एंड. ये हमारे करिकुलम में है, हम सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में हाउ टू डिज़ाइन अ फ्रंट एंड. ठीक है. डेटाबेस एंड सीक्वल कोड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप.
देन कनेक्टिविटी बिटवीन दीज टू थिंग्स, बैक एंड और फ्रंट एंड को आपस में कैसे कनेक्ट करना है, दैट कनेक्टिविटी इज टू बी डन. So with this, once you done with all this design part, implementation part, so after implementation the software is ready. Now before it goes to the user or it goes to the market, हमें उसको पहले check करना पड़ेगा. Checking के लिए हम testing phase में जाते हैं. Now here we'll put some sampled sets of the data. हम कुछ sample data input करके देखते हैं और फिर then we'll try to find out कि हमने जो आउटपुट सोचा था कि क्या वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, तो विल गिव द सैंपल डेटा एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द आउटपुट. एंड इफ वी फाइंड सर्टेन प्रॉब्लम, सर्टेन बग्स आर द प्रॉब्लम एरियाज. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स या बग्स मिलते हैं देन वी विल फिक्स देम, उसको कैसे ठीक करना है, राइट. एंड टेस्टिंग इज डन एट ईच फेज, ईच फीचर सेपरेटली. हर फीचर को अलग अलग तरीके से टेस्ट करना है, हर फीचर के लिए अलग अलग तरीके से इनपुट करेंगे एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एरर्स कहाँ हैं एंड देन विल मॉडिफाई द कोड एज पर द एरर्स वी फाइंड आउट एंड फाइनली द एंड वैलिडेट द मॉडिफाइड कोड. सारा जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी उसको वैलिडेट करना है. Once the final validation is done, then the application is ready for use and release. जब आपका सारा मॉडिफिकेशन हो गया, हमने मॉडिफाई करने के बाद उसको वैलिडेट कर दिया. वैलिडेट करना मतलब कि आपने जो मॉडिफिकेशंस कर ली क्या वो सही है. अगर वो सही है then the final output will be made and their software of the project is ready for market, right. This is how we can create our software. These are the steps for creating the software. ऑल्दो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, बाकी द मोमेंट विल जंप ओवर टू द फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग. जब हम जावा की फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ये हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू अकर, हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डन. Now after this we have case studies. I'm not going to cover up case studies right now because इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जावा बेस्ड हैं. तो मैं पहले जावा जब हम कर लेंगे उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को. इसमें बेसिकली उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं. आई जस्ट गो थ्रू वन. जैसे ये ऑनलाइन गेम का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल विल जैसे हैंगमैन दे वांट टू मेक. हैंगमैन इज़ अ पॉपुलर गेम. इस गेम में क्या क्या होता है और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन इज गिवन. उसमें डेफिनेशन फेज में हमें क्या क्या चाहिए, फिजिबिलिटी में क्या होगा, स्कोप में क्या होगा, डिज़ाइनिंग में हम क्या क्या करेंगे. जैसे डेटाबेस पे हम विल प्लान आउट के भी डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स बनेंगे, उसमें ये कॉलम्स होंगे, उसका ये डेटा टाइप्स और ये चीज़ें उसमें हम ऐड अप करेंगे लिंकिंग करने के लिए. पेज स्ट्रक्चर में ऐसा पेज दिखेगा, ठीक है, ये चीज़ें गिवन होंगी, राइट. दीज आर द आउटपुट्स. ऐसे वो यूज़र के सामने इंटरेक्शन के लिए आएगा, ठीक है. ये आती कैसे हैं विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम. और लास्ट में जब ये बन जाएगा फिर टेस्ट करेंगे, ठीक है. So this is all this case study is about. Likewise, some other examples are also given. There are two, three examples given over here. Case study जो online bill calculator है, ये उसकी case study है. So the book is available with you. Can go through it and बाकी हम इसके बारे में next time discuss करते हैं, ठीक है. ये जैसे ये front end part है, ठीक है. फ्रंट एंड थोड़ा मैं समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप लोगों को. फ्रंट एंड क्या होता है, ये एग्जांपल्स को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे. सो वी आर गोइंग टू एंड अप हियर. इसमें इस चैप्टर इसके बाद चैप्टर इज ओवर एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट जावा ओनली. उसमें हम ये फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सीखेंगे, राइट. सो so kindly go through all the things we have discussed and go through the book. And still if you find any problems, any difficulties, then we'll definitely discuss. और ये प्रॉब्लम्स के केस स्टडी ज़रूर पढ़ना. इसमें आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि फ्रंट एंड बैक एंड और ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं. बेसिकली एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट फॉर आवर प्रैक्टिकल्स ऑल्सो. ऐसे प्रोजेक्ट हमने एक फाइनल बनाना भी है जिसके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं,
ठीक है, वी नीड टू मेक वन प्रोजेक्ट एंड वन फाइल ऑल्सो। तो ये जावा जैसे फिनिश अप होगी देन आई विल जंप ओवर टू प्रोजेक्ट्स एंड फाइल्स। आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाना और विल डू वन प्रैक्टिकल थिंग ऑल्सो।